long. And Narad Muni's watching, how is this fellow the best of devotees? So he watched the whole day, and then he went back to Lord Vishnu, and Vishnu said, so, what did you think? And Narad Muni said, he didn't go to Mangal Artik. He didn't go to Darshan Artik. He didn't go to Bhagavatam class. He didn't chant any japa that I saw. How is he the best devotee? And then Lord Vishnu asked Narad Muni, he said, yesterday when you were watching him, how many times did you remember me? And Narad Muni said, well, to tell you the truth, I didn't think of you at all. It was so busy just watching this fellow. He was so busy with so many things, I had no time to think about you. And Lord Vishnu said, yes, but he was thinking of me all day. While he was doing so many works. So our Guru Maharaj used to say, there's a phrase in Odi, I can't remember, that Antaranga, Bahiranga, externally, you look like an ordinary person. You do your work. You tell your wife, yes, dear, whatever you say, dear, right away. I'll make money, I'm working hard. And you look like a henpecked husband. But internally, you're very, very detached. And that's the best devotee. And it doesn't matter what kind of cloth they wear. We have this temple because what is the purpose of the temple? We want to preach, we want to share this with everyone. We want to train new people. And then some of the students, they stay and they become teachers, like Sabbatpati Prabhu and Tukaram Prabhu and others. They stay and they continue teaching. Some of them do administration, some of them are teaching. But most of the people who get trained, they're going to go and get a job, they'll get married, they'll work, they'll have a house. This is our hope. We want that. You're the secret agents. The Sabbatpati Tukaram Prabhu go out on the street and I know, leave me alone. Hare Krishna, here, take 10 rupees, now go away. They'll tell them like that. But if you go there and say, oh, what is it? You're a secret agent. And we need more secret agents. It's very important to establish Krishna consciousness. Is that okay? Anybody else with anything? Tukaram Prabhu, what should we do? Okay, we have a drama. Okay. Aapka bahut dhanyavad. Thank you all very much. Srila Prabhupada ki, Samaveda Bhaktavinda ki, Srimad Vajradasa Ganaiti Murti Mahabhat Prakash Jagannath Swami ki, Shri Prem Purushottam Sachinandana Gaurahari ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Premanande, Vanchakopadarubhischa, Kripa Sindhu Devacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha, Nanda Kori Vaishnava Vrinda ki Jai. I turned it off and said, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare I am speaking to Priya. Okay. हमने बहुत धन्य जेतु शब्द को मालूम है ना कोरिया कोरिया ना ठीक है जेतु हमें माधवानंद प्रभु कहे वास्तव माधवानंद प्रभु जेतु गुरुदेव प्रवचन दियंती कि विदेश जाती आ गुरुदेव जोड़ा प्रवचन समय कहते श्लोकड़ा दरकार माधवानंद साईं से श्लोक बाहर करती आज मैडम प्रभु पढ़ाई स्पीकिंग Kichi. संगे से महाराज से श्लोक बाहर करती तो ट्रांसलेट करती तर अनुवाद मध्य पढ़ती हाँ पूरा एक्सपर्ट है तो थे अच्छे आ बर्तमान जेते गुरुदेव भाई
ছিল প্রভুপাদଙ୍କର ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ପୂର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟ ବହିକୁ ସେ ଗୋର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ସହିତ ବାହାରି କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଗୋପାଳଜୀ ପବ୍ଲିକେସନ। ତେଣୁ ତା ଆମେ ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ଗୁଡ୍ ଫର୍ଚ୍ୟୁନ ବାସ ଯୋଉ ସେ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଜି ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଆମ ସମସ୍ତର ଗୁଡ୍ ଫର୍ଚ୍ୟୁନ ସୌଭାଗ୍ୟ। କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଭକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରି ବାସ୍ତବରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ସଂଘ। ଯେତେ ଯାହା ହେଉଛି ସଂଘ ଦରକାର। ଯଦି ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ ବା ଯେଉଁମାନେ ଆମଠୁ ଉତ୍ତମ ଅଧିକାରୀ ଆମଠୁ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଭଜନ ସବୁରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସଂଘ ଲାଭ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭକ୍ତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା। ତେଣୁକରି ସେ ଆମ ସଂଘ ଆମକୁ ସଂଘ ଯେହେତୁ ଆମେ ତେଣୁ ଆମର ୟୁଥ୍ ଫୋରମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। And also we are requesting Madam to come frequently to our youth forum as well as to our temple so that we can get chance to hear from him. And also giving many thanks to Mataji and Krishnamur Mataji. She also very expert to help to Mahaprabhu Prabhu. We also be giving thanks to her because she is coming to our Bhubaneswar. Hare Krishna. So all that God me. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram Hare. जय मानंदा प्रभु की जय, कृष्ण महाराज की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, कृष्ण बलराम की जय, बलदेवताय की जय, जगन्नाथ बलदेव महारानी की जय, श्री राधा गोविंद महाप्रभु की जय, श्री राधा गोपाल जी की समवेत भक्त वृंद की जय, गुरु प्रेमानंद जगन्नाथ। वर्तमान में ब्रह्मा दर्शन करवा तापर महाप्रसाद गोविंद तापर हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब नचिकेता की लाइफ के ऊपर एक ड्रामा है, तो आप लोग ध्यान से ड्रामा को देखिएगा। सब लोग पीछे हो जाइए क्योंकि हमारे एक्टर्स को आने के लिए स्थान चाहिए। जितना छोटा है इसको हटाएंगे ना, इसके ऊपर आप सामने
रामानंद उधर रख देते हैं, उधर रखते हैं। और वो जगह इसको छोड़ दीजिए, ज्योति को। नहीं मतलब छोड़ेंगे नहीं, इधर साइड में एडजस्ट हो जाइए। पीछे जाएंगे क्यों? कहाँ जाएंगे? हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। ठीक है। और सुनिए, कृपया करके आप लोग हमारे ड्रामा आर्टिस्ट का तालियों के साथ उत्साह बढ़ाइएगा। सत्य युग का पवित्र काल है। देश भर में यज्ञों का प्रचार हो रहा है। यज्ञ धूम से और उसके पवित्र सौरभ से आकाश भरा हुआ है। वेद के वरद मंत्रों से दिशाएं गूंजती हैं। यज्ञ का हवि ग्रहण करने के लिए स्वर्ग से देवगण पृथ्वी पर उतरते हैं। पवित्र और आनंदमयी वाद्य ध्वनि से समस्त जीव प्रफुल्लित हो रहे हैं। यज्ञकर्ता यज्ञ की पूर्णाहुति होने पर परम श्रद्धा से ऋत्विक गण को दक्षिणा बांटते हैं। आकांक्षा रहित होकर सात्विक यज्ञकर्ता वेद विधि का पूर्णतया पालन करते हुए समस्त कार्य संपादन करते हैं। ऐसे पवित्र युग में ऋषि वाजश्रवा के सुपुत्र उद्दालक मुनि ने विश्वजित नामक एक यज्ञ किया। ऋषि वाज्यश्रवा का पुत्र वाज्यश्रवा আজি এঠারে বিশ্বজিৎ নামক বিশাল যজ্ঞ আয়োজন করেছি। এঠারে উপস্থিত থিবা ব্রাহ্মণ মানে আপন ମାନଙ୍କୁ ହିଁ କହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭୋଜନ ଓ ଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ସେବକ କମଣ୍ଡକୁ ନେଇଯାଅ। सेवक दान सामग्री आना। ये कौन? ये मूल्यवान वस्तु दान करी रखी दे जाओ। अल्लाह किसी नहीं आसो। वो सस्ता था आगे ब्राह्मण अरे मूर्खा बुझी पार ना ये गुणी मूल्यवान सामान धरी आस।
କିଛି ଶସ୍ତା ସାମାନ ଧରିକି ଆସ। ये सस्ता सामान है तब दान करवा योग्य कौन है तो घोड़ो ठीक से क्षीर दौची चली पारुनी एटा देईदवा हां दान करिया ताको आगे ब्राह्मण स्वीकार चल सबड़ गाई भल क्षीर दौची मैं बुझे पार किसी ताको नहीं जाओ बसरा रखो विकलांग गाई धरिक आस दुर्बल गाई धरिक आस ताकू दान करवा योग्य ये मो बसरा रहिबा योग्य गाई लागू किस दिन पर मरी जीव अरे बालक के नचिकेता नामक एक पुत्र था। जिस समय ऋषि ऋत्विज और सदस्यों को दक्षिणा बांट रहे थे और उनमें अच्छी बुरी सभी तरह की गौनें दी जा रही थीं, उस समय बालक नचिकेता के निर्मल अंतःकरण में श्रद्धा ने प्रवेश किया। नचिकेता ने अपने मन में सोचा, पीतोदका जगत तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया आनंदा नाम ते लोकास्तितांस गच्छति तादतत। हाय हाय पिताश्री आपण ए विशाल विषय यज्ञ आयोजन करी ब्राह्मण मानकु मूल्यवान द्रव्य देवा परिवर्ते ताकू जिज्ञासीर गाई प्रदान करछथि एहा उचित नहीं पिताश्री एहा उचित नुहे। अरे तू छोट बड़ा बड़ा तू मते कोन उपदेश दउछु तू जा एठू। अवश्य पिताश्री मो बयस रे आपनटु बहुत छोट किंतु पिताश्री जदि एपरि दान करिवे तो यज्ञर कोन बा साफल्य प्राप्ति हेबो आउ विषय यज्ञ आयोजन करी जदि एपरि दान करिवे ताले कोन बा फायदा एहा आदौ उचित नहीं पिताश्री एहा आदौ उचित नहीं। अरे मूर्ख तू कोन बुझी पारनु तू मते मो कर्तव्य सिखाउछु मु मो कर्तव्य बहुत भल से जाने तू जा सेठी ब्राह्मण मान को भजन आयोजन कर। ए आजिकर पिला माने कोन हेला के जानि सब निज को बहुत ज्ञानी मन कर सुनियो पिता उपासी को उपदेश देवा को लागिलेनी। हेले पिताश्री विषय यज्ञ आयोजन करी आपण ब्राह्मण मानकु एठार उपस्थित समस्त ब्राह्मण मानकु मूल्यवान जिंस न दे ए जीरशीर्ण दुर्बल जिंस उडा प्रदान करछंती। पिताश्री ए यज्ञर उद्देश्य आपण को निज मूल्यवान जिंस दान करि हेबो जदि आपण मूल्यवान जिंस दान करनाती ताले एहा यज्ञर कोनसी लाभ नाही। और पिताश्री जेपर जने पुत्र पाई जने जेपर पिता पाई तार पुत्र ही सबड मूल्यवान संबळ होइताय तो पिताश्री मते आपण काहु दान करि जाय पिताश्री कोन पिताश्री मते आपण ए तू जा तो जमा को दान करि जा अति शीघ्र उठो। जो गौएं
अंतिम बार जल पी चुकी हैं, घास खा चुकी हैं और दूध दुहा चुकी हैं। जो शक्तिहीन अर्थात गर्भ धारण करने में असमर्थ हैं। ऐसी गायों को जो दान करता है वह उन लोगों को प्राप्त होता है जो आनंद से शून्य हैं। इस प्रकार की भावना से सरल हृदय नचिकेता के मन में बड़ी वेदना हुई और अपना बलिदान देकर पिता का अनिष्ट निवारण करने के लिए उसने कहा, तत्कस्मै माम दास्येति। हे पिताजी, मैं भी आपका धन हूं, मुझे आप किसको देते हैं? हे पिताश्री, मु मध्य आपण धन तो मते आपण जदि जमराज देबको चाहुछंती तो ठीक अछि पिताश्री, मु प्रस्तुत अछि मु पिताश्री, मु प्रस्तुत अछि। ऐसा विचार कर उसने यमराज के यहां जाने का निश्चय कर लिया। धन्य पितृ भक्ति और धन्य त्याग। पुत्र की व्यवस्था देख ऋषि एक और बैठे पछता रहे थे कि मैंने क्रोध में पुत्र से क्या कह दिया। इतने में ही नचिकेता ने पिताजी के पास जाकर कहा, अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः। पिता को हे पिताश्री, मते जमल प्रश्न मते अनुमति दियंतु पिताश्री, अनुमति दियंतु। ना पुत्र ना, मु तुमको क्रोधरे बोधरे बहुत पीछे एपट सेपट कहि दिछि, किंतु कोउ पिता चाहे कि से पुत्र को जन्म दान करे बोली। हाँ, यह तो ठीक पिताश्री, किंतु पुत्रर कर्तव्य है से निजर पिताकर वचन को सत्य सुचारू रूपे पालन करबा आवश्यक। आउ आम वंश रे जेते सब पूर्वज आछंती समस्त निज जीवन रे सत्य को अवलंबन करछंती और समस्त सत्य पथर अग्रसर होछंती, केही भी निज जीवन रे मिथ्या को अवलंबन करि नाथि। आउ जो व्यक्ति मिथ्यार अवलंबन करथाय तार परिणाम बहुत भयंकर होइता पिताश्री, बहुत भयंकर होइता। तो पिताश्री मते एथि भाई जमल को दिबाको अनुमति दियंतु पिताश्री, अनुमति दियंतु मते। पिता को बड़ा दुख हुआ, परंतु पुत्र की सत्यपरायणता देखकर ऋषि ने आज्ञा दे दी। नचिकेता ने पिता के वचनों को निभाने के लिए यम सदन की ओर प्रयाण किया। निर्भीक चित्त नचिकेता ने पिता की आज्ञा अनुसार यमराज के घर पर आकर पता लगाया तो मालूम पड़ा कि यमराज बाहर गए हुए हैं। हे बाळको तुमे किए एठाके कोन पे आछो?
प्रणाम यमदूत मु होची ऋषि बाजासुरଙ୍କ पुत्र नचिकेता आउ मु एठारे मो पितृसत्य मो पितांकर आदेश पालन करी मु यमराज को साक्षात मते एठारे उपस्थित होई अछि कृपया करी मते यमराज को साक्षात करबे अनुमति दियंतु यमदूत किंतु यमराज वर्तमान उपस्थित नांती तुम्हें जाओ और आसिबो यमराज उपस्थित नांती ठीक अछि जे पर्यंत यमराज आसी नांती से पर्यंत के मु एठी प्रतिज्ञा करी ताको पई मु प्रतिज्ञा करी किंतु यमराज मु आसिबारे विलंब हबो तुम्हें जाओ पोरछे आसिबो मोर पितांकर आदेश अछि तो मते मु जेमिति हेले यमराज को साक्षात करबी यमराज को साक्षात न करि पाइ तो मु एठारु जिबि नहीं एठारु मु जिबि नहीं ठीक अछि वस्त किंतु तुम्हें बहुत दुर्बल देखाओ छ बुझल करछ जे पर्यंत मु यमराज को साक्षात पाइनी से पर्यंत मो अन्न जल कोनोसी भी किछि द्रव्य ग्रहण करिबे नहीं कृपया करी मते एठारे अनुमति दियंतु मु प्रतीक्षा करिया ठीक अछि बालक तुम्हें सेठारे अपेक्षा करो अजी केता को 3 रात्रि तक अन्न जल ग्रहण किए बिना यमराज की प्रतीक्षा करनी पड़ी। तीसरे दिन यमराज के लौटने पर घर के लोगों ने यमराज से कहा, हे बालक तमे किए एटा कोन आछो प्रणाम धर्मराज मु होची ऋषि बाजासुरଙ୍କ पुत्र नचिकेता मोर पिता ऋषि बाजाश्रवा विश्वजित नामक एक विशाल यज्ञ आयोजन करथिले आउ किंतु ए यज्ञ से ब्राह्मण मानकु मूल्यहीन संपद प्रदान करथिले तथा जराजीर्ण दुर्बल के दान करथिले तो एहा देखि मु सही कर पालेनी किंतु मोर पिता को निवारण मु करबा को प्रचेष्टा करिबारु मोर पिता मते क्रोधित होई कहले जा मु तते जमक दान देउची तेनु हे धर्मराज मो पितांकर पितृ से पालन करबे मते अपन निकट उपस्थित होई अछि। तीसरे दिन यमराज के लौटने पर घर के लोगों ने यमराज से कहा, साक्षात अग्नि ही ब्राह्मण अतिथि के रूप में घर में प्रवेश करते हैं। साधु गृहस्थ उन अतिथि रूप अग्नि के दाह की शांति के लिए उसे जल पाद्यार्थ दिया करते हैं। अतएव हे वैवस्वत, आप उस ब्राह्मण बालक के पैर धोने के लिए जल ले आइए। अतिथि 3 दिनों से आपकी बाट देखता हुआ अन्न लिए बैठा हुआ है। अतएव आप स्वयं उसकी सेवा करेंगे तभी वो शांत होगा। जिस अल्प बुद्धि पुरुष के घर पर अतिथि ब्राह्मण बिना भोजन किए रहता है, उस मंद बुद्धि की सारी आशा और प्रतीक्षाएं, ज्ञात और अज्ञात वस्तुओं के प्राप्त होने की इच्छाएं, उनके संयोग से प्राप्त होने वाला फल, उसकी संपत्ति, पुत्र, पशु, सत्य भाषण, यज्ञ और सारे पूर्त अर्थात कुएं, तालाब, धर्मशाला आदि बनाने का पुण्य नष्ट हो जाते हैं। हे ब्राह्मण पुत्र नचिकेता, तुम पितृभक्ति देखी मो अत्यंत प्रसन्न। तुम्हें 3 दिन धरी उपवास रखी मो पई अपेक्षा करथिबारु मु तुम पई कृतज्ञ जणाउची। जेहेतु तुम 3 दिन मो पई अपेक्षा करछ सेते मु तुम 3टी वर देबाकु चाहे। पुत्र मानो, पुत्र नचिकेता मानो। धन्य यमराज, धन्य मु आपनक दर्शन पाई निजको धन्य मने करूची।
जदि आपण मते वर देबाक चाहउछंती ताहाले मते प्रथम वर ए दियंतु कि जे जपरी मु जेबे मोर पिता पाखु जाई से मते पूर्व परि स्नेह करंतु आ मोर पर जदि क्रोधसी ताकर पासे जाऊ मते वरदान दियंतु यमराज जेमति कि जपरी जने साधारण पिता तार पुत्र को स्नेह करताई ठीक सेही परि भाबरे मो पिता मते मते स्नेह करंतु वरदान दियंतु यमराज। तथास्तु पुत्र तथास्तु। इस बात को सुनकर यमराज जल से भरा हुआ स्वर्ण कलश लेकर दौड़े और अतिथि नचिकेता को पाद्यार्थ देकर आदत पूर्वक कहने लगे। यमराज के द्वार पर 3 दिन तक अतिथि भूखा पड़ा रहे। कितना बड़ा अपराध। प्राचीन भारत में अतिथि सेवा गृहस्थ का सबसे आवश्यक कर्म माना जाता था। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि अतिथि को साक्षात नारायण मानकर उसकी सेवा करनी चाहिए। जो गृहस्थ अतिथि सेवा से शून्य है उसके समस्त शुभ कर्मों को वह भूखा अतिथि ले जाता है। यमराज की बात को सुनकर सदा संतुष्ट नचिकेता ने यह सोचकर कि पिता को सुख पहुंचाना ही पुत्र का सबसे पहला कर्तव्य है, यमराज से पहला वर मांगा। पितृ भक्त बालक की पहली कामना पूर्ण हुई। नचिकेता ने इस प्रकार पिता का सुख संपादन कर फिर समस्त जीवों के मंगल के लिए स्वर्ग के साधन अग्नि तत्व को जानने के लिए यमराज से कहा। हे यमराज जो मते द्वितीय वर रे कहंतु कि स्वर्ग रो लक्षण कोन आ जने साधारण व्यक्ति किपरि स्वर्ग प्राप्ति हे परिबो कहंतु मते यमराज आ स्वर्ग साधन ने मते स्वर्ग प्राप्ति ने मते कोन साधन करबा तार प्रणाली किपरि अवलंबन करबो एहा मते विस्तार भाबे वर्णना करंतु यमराज कहंतु यमराज। हे वत्स नचिकेता मु तुम स्वर्ग यज्ञ ज्ञान तुम प्रदान कर प्रभु तथास्तु। नचिकेत अग्नि को स्वर्ग का साधन बतलाकर और उसकी कुछ और प्रशंसा करके यमराज ने नचिकेता से कहा, तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीष्व। हे यमराज जेपर कि स्वर्ग विषय आपण वर्णना कले किंतु यमराज से स्वर्ग पाई कोन बा लाभ जो स्वर्ग सुख बहुत क्षणिक से स्वर्ग पाई कोन बा लाभ जदि यमराज सतर मते वर देवा चाहछे ताले मते आत्मार तत्व ज्ञान देतु जोटा कि साधारण मनुष्य भाई दुर्लभ सेही ज्ञान देतु यमराज जोटा कि जीवन लक्ष्य सेही ज्ञान देतु यमराज आ किपरि भाबरे मो आत्मा परमात्मा विषय जानि परबी आ निज जीवन परम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त करि परबी मते उपदेश दियंतु यमराज उपदेश दियंतु। हे नचिकेता अब तीसरा वर मांगो। पिता की प्रसन्नता का वर इस लोक के लिए और स्वर्ग के साधन अग्नि का ज्ञान परलोक के लिए वर कर नचिकेता सोचता है कि क्या स्वर्ग सुख में ही जीवन का परम कल्याण है। स्वर्ग से भी तो पुण्य आत्माओं का पुण्य क्षय होने पर वापस लौटना सुना जाता है। अतएव अब तीसरे वर से उस मृत्यु तत्व या आत्म तत्व को जानना चाहिए जिसके जानने पर और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता। ऐसा सोचकर आत्मा परलोक में जाता है या नहीं, मरने के बाद आत्मा की क्या गति होती है, इस आत्मज्ञान के जटिल प्रश्नों को समझने के हेतु नचिकेता ने यमराज से कहा। यमराज मते आत्म तत्व विषय उपदेश दियंतु यमराज कृपया कर मते आत्म तत्व विषय उपदेश दियंतु। नचिकेता का महत्वपूर्ण प्रश्न सुनकर यमराज ने सोचा, ऋषि कुमार बालक होने पर भी बड़ा ही बुद्धिमान है, कैसे गोपनीय तत्व को जानना चाहता है, परंतु आत्म तत्व उपयुक्त पात्र को ही बतलाना उचित है। अनधिकारी के समीप आत्म तत्व प्रकट करने से हित के स्थान में प्राय अनिष्ट ही हुआ करता है। इसलिए पहले पात्र परीक्षा की आवश्यकता है। हे पुत्र नचिकेता मते बारंबार विवश करो नहीं। ये प्रश्न बहुत दुर्लभ आत्मज्ञान विषय जानिया पई किंतु सामान्य देवता माने भी ये ज्ञान प्राप्ति होतनी तो साधारण ये निरीह मनुष्य माने केमति हे परिबे। मते अन्य किछि मागि दियो भक्त, मते अन्य किछि मागि दियो अवश्य। सा विचार कर यमराज ने इस तत्व की कठिनता का बखान करके नचिकेता को टालना चाहा। नचिकेता विषय की कठिनता का नाम सुनकर घबराया नहीं। किसी विषय को जब नहीं बतलाना होता है तो सबसे पहले उसकी कठिनता का भय दिखलाया जाता है।
यमराज ने भी परीक्षा के लिए यही किया, परंतु नचिकेता इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। अब की बार यमराज ने और भी कठिन परीक्षा लेनी चाहिए। साधक की परीक्षा के लिए दो ही प्रधान शस्त्र होते हैं, एक भय और दूसरा लोभ। नचिकेता भय से नहीं डिगा, इसलिए अब यमराज ने दूसरे शस्त्र लोभ का प्रयोग उस पर किया। यमराज ने कहा, तुम क्या करोगे ऐसा वर लेकर? तुम ग्रहण करो इन सुख की विशाल सामग्रियों को। शतायुश्च पुत्र पौत्रान वृणीष्व बहून पशून हस्त हिरण्यम श्वान भूमिर्महदायतनम वृणीष्व स्वयं च जीव शर्दो यावदिच्छसि। 100 वर्ष जीने वाले पुत्र पौत्र मांगो, गौ आदि बहुत से पशु, हाथी, स्वर्ण, घोड़े और विशाल भूखंड का राज्य मांगो, और इन सब को भोगने के लिए जितने वर्ष जीने की इच्छा हो उतने ही वर्ष जीते रहो। इतना ही नहीं, इसी के समान और कोई वर चाहो तो उसे और प्रचुर धन के साथ दीर्घ जीवन मांग लो। अधिक क्या, इस विशाल भूमि के तुम सम्राट बन जाओ। मैं तुम्हें अपनी सारी कामनाओं का इच्छा अनुसार भोगने वाला बनाए देता हूं। इसके सिवा जो जो भोग मृत्यु लोक में दुर्लभ हैं, उन सबको तुम अपनी इच्छा अनुसार मांग लो। ये रथों समेत और वाद्यों समेत जो सुंदर रमणियां हैं, ऐसी रमणियां मनुष्यों को नहीं मिल सकती। मेरे द्वारा दी गई इन सारी रमणियों से तुम अपनी सेवा कराओ। परंतु हे नचिकेता, मुझे मरण संबंधी, मृत्यु के बाद आत्मा रहता है या नहीं, यह प्रश्न मत पूछो। हे महाराज, शतायु आयुष्य, शत शत पशु हाथी एवं असंख्य रमणीय, यार कि प्रयोजन जोटा कि बहुत क्षणिक। ये क्षणिक सुख भी कौन बा लाभ? जेपरिक जड़े व्यक्ति बहुत कष्ट साधन स्वर्ग जाए कि शेष परिशेष भौतिक जगत राशि पुणी कष्ट सहयोग पड़े। तो ये भोगर कौन बा फायदा? यमराज जदि मत सतरे आप बरदान देना चाहती दयाकोरी मत आत्मज्ञान दत्त दिंतु। मत महाराज मत आत्मज्ञान दिंतु। यमराज हे धर्मदेव, हे गुरुश्रेष्ठ, हे धर्मदेव मत आत्म दिंतु। हे भक्त श्रेष्ठ कहते हे सूर्यपुत्र मत आत्मज्ञान दिंतु। यमराज आत्मज्ञान दिंतु। हे पुत्र नचिकेता, तुम पितृभक्ति एवं तुम दृढ़ निष्पत्ति देखी मु तुम ऊपर प्रशंसा हेली। तुम्हें आत्मज्ञान नेबार योग्य तो कह, कौन तुम जानिया चाहो कह मते। हे महाराज, ये ज्ञान पाई मु निजको बहुत गौरवान्वित मन करी। साधारण जीवन कल्याण रे ही प्रश्न शुणी साधारण जीवन कल्याण हेब। हे महाराज, मु प्रथम प्रश्न पचार चाहिए जेपरिक साधारण मनुष्य साधारण छोट पिला प्रश्न था जेपरिक शरीर कौन, आत्मा कौन, और आत्मा और शरीर एक भीतर पार्थक्य कौन कहतु। यमराज कहतु। हाँ पुत्र, शरीर हूँ अनित्य, शरीर ही पंचभूत गढ़ा पुत्र। आत्मा हूँ नित्य। सब जाणी रख पुत्र, अनित्य और नित्य भितर भेद कौन? अनित्य हूँ समय अनुसार जहाँ विनाश होता है, जहाँ ह्रास पाई थाए, किंतु नित्य हूँ जे अज शाश्वत सर्वदा विद्यमान, जार विनाश हुए ना पुत्र समय अनुसार। अविनाशी तद्वति जेन सर्वविदत्तम विनाशम व्यस्य न कश्चित् कृतं हति। अर्थात आत्मा अविनाशी होते पुत्र, आत्मा को कहीं विनाश कर पारे नहीं। तामाने आत्मा अविनाशी, आत्मा के विनाश करि परिबे नहीं। हाँ पुत्र, आत्मा अविनाशी, आत्मा नित्य अज शाश्वत सर्वदा विद्यमान, अमर एवं पुरातन अटे। न जायते म्रियते वा कदाचित्, न अयं भूत्वा भवति वा भूय। अज नित्यं शाश्वत पुराण, न हन्यते हन्यमान शरीरे। शरीर मृत्यु रे आत्मार मृत्यु हुए ना पुत्र। एपरि एक समय नथिला जेतले या नथिला, भविष्य रे एपरि एक समय नथिबो जाया नथिबो। तामाने यमराज, आत्मा हम शरीर मध्ये अछि, तो आमे को काहे देखि पारु न यमराज? आमे काहे देखि पारु न यमराज? अवश्य आत्मा एते सूक्ष्म जिनिस जे आम पंचभूत रे गठित एई चक्षु साहाय्य रे हम देखि पारिबा नै। बालज्ञ सत भाग्यस्य सताधि कल्पितस्य च। अर्थात आमे जदि आम केशर अग्रभाग को जदि आमे 10 भाग भाव रे जदि विभाजित करिबा, परिणाम रे जहा बळिबो से होती आत्मार आकार। तामाने आत्मा एते सूक्ष्म हेले महाराज, आपण जपरि कहिले शरीर अनित्य किंतु आत्मा नित्य। तामाने
जीवन मृत्यु पर शरीर तो सेठी पड़ी रहे ताले आत्मा रे कौन गति दिए महाराज आत्मा तापर कुआडे जाए महाराज हाँ पुत्र समग्र जगतर जटिल प्रश्न तुम पचारि शरीर मृत्यु पर आत्मा रे कौन रे आत्मा कुआडे जाए कहाँ से मिसे वंशसि जिन्ननि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जिन्नानि अन्यानि संजाति नवानि देहि अर्थात गोटे मनुष्य गोटे शरीर जेपरि नूतन पुरातन पोषाक त्याग करी नूतन पोषाक परिधान करिଥାଏ सेहीपरि भाବରେ आत्मा नूतन पुरातन शरीर त्याग करी नूतन शरीर ग्रहण करिଥାଏ पुत्र वाह अद्भुत अद्भुत ज्ञान तमाने आत्मा गोटे शरीर त्याग करी अन्य गोटे शरीर प्रवेश करे रही जा पुत्र एतिके सरिनी पुत्र देहिना देहिस्मिन् यथा देहे कोमरंज वरंजरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर सतत्व न मुह्यति अर्थात आत्मा जेताले शरीर रे थाए बाल्यावस्था यौवनावस्था वृद्धावस्था परे मृत्यु को प्राप्ति होइଥାଏ पुत्र हेले महाराज मो मनरे गोटे शंका उठी गला हेले आत्मा गोटे शरीर आ गोटे शरीर प्रवेश करे किंतु किए निर्धारण करते एडी महाराज किए याको निर्धारण करते अवश्य कल्पने विद्या नेत्रेण अर्थात जेपरि भाବରେ आत्मा गोटे शरीर को जाई पुरुषर बीज साहाय्य मातृगर्भ रे आश्रय पाए एवं गोटे नूतन भौतिक शरीर प्राप्त होइଥାଏ एई समस्त जीव जगतर भौतिक कर्म को त्रिगुणात्मिक प्रकृति संपादित करଥାଏ पुत्र प्रकृति सेटा पुणी कोन महाराज सेटा कोन हाँ पुत्र प्रकृति होची परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण बहिरंग शक्ति आउ परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण निर्धारण रे ए प्रकृति समस्त कार्य संपादन करते पुत्र प्रकृति अनुसार ये सब कार्य संपादित होता है तो यह भगवान को अधीन संपादित होता है किंतु ये महाराज जन्म पर पुनः मृत्यु पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये जन्म मृत्यु चक्र कौन है महाराज जन्म मृत्यु चक्र हाँ पुत्र तम ये आत्मज्ञान प्रति लालसा देखी मत अत्यंत खुशी लगुच पुत्र हाँ पुत्र जन्म पर मृत्यु मृत्यु पर जन्म पर मृत्यु मृत्यु पर जन्म बारंबार चक्र चली थाए कारण जीवात्मा अज्ञान थाए अज्ञान वशीभूत होई से केबे जीवन प्रथम लक्ष्य को केबे जानी पारेनी कौन ता कर्तव्य ये जीवन रे से कौन पाई आसी कौन पाई जन्म मृत्यु चक्र से फसी जाउची केवल गोटे मनर लालसा जगु से जन्म मृत्यु चक्र फसी जाए पुत्र हेले महाराज ये जन्म मृत्यु चक्र बंधन कारण कौन कौन तो कृपा करी हाँ अवश्य मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधमते अर्थात ए मनुष्य थिबा ए मन बंधन जगु अर्थात शरीर जेतले छोट जेतले गोटे पिला जन्म नहीं थाए तापरे बंधु बांधव एवं भौतिक वस्तु से संस्पर्श में आसी से जीवन परम लक्ष्य को भूली जाए परम पुरुष भगवान को से भूली जाए तद्वारा से शेष मुहूर्त भगवान श्री कृष्ण को स्मरण कर पारे तद्वारा से जन्म मृत्यु चक्कर फसी जाए एवं शेष मनर चेतना अनुजाई जेपरी भाव में जीवात्मा तार जीवन सारा जो चेतना से जाइए से चेतना से पर जन्म से भली शरीर प्राप्त होता है पुत्र हेले धर्मराज हे भक्त श्रेष्ठ हे सूर्यपुत्र मन बुद्धि ज्ञान आत्मा एक भीतर संपर्क नहीं महाराज कृपया कर मत पूरा विशेष भाव में वर्णना करो जपरी मु गोटे साधारण बालक बुझी पारिबी हाँ पुत्र मु यहाँ को तुम गोटे उदाहरण दे बुझी पारिबी गोटे शरीर रूपक रथ तमे भाव ताकू से चित्र को से दृश्य की भाव तमे शरीर रूपक रथ होची जीव एवं से सारथी होची आम बुद्धि से लगाम होची आम मन जोरा कि चंचलाती मन कृष्ण बहुत चंचल मन एवं से घोड़ा पांचटी जो लगी से इंद्रिय सदस्यता को तो तुलना कर पुत्र वाह अद्भुत अद्भुत ज्ञान है महाराज अद्भुत ज्ञान भाई मोर जीवन धन्य मन करूँ किंतु महाराज जड़े साधारण जीवर लक्ष्य कौन जीवर कौन कर्तव्य रहा आवश्यक जीवर कौन कर्तव्य जीव किपरि भगवान प्राप्त कर मन को किपरि नियंत्रित करवा किपरि जड़े साधारण जीवन नियंत्रित कर कहतु महाराज कहतु हाँ अवश्य
ए जन्म मृत्यु चक्कर बाहर बहुत कष्ट किंतु कलिजुगरे यह असंभव नुहे। हरि नाम ही केवलम नास्तेव गति अन्यथा। तेणु ये मंत्र समस्ते उच्चारण करेंगे। समस्ते मो संगे कहतु हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तामने ए कलिजुगर तरिया पे साधारण जीव किपरि तरी परिबो ना हरे कृष्ण मंत्र जप करि पारो। हेले यमराज मु तो गोटे बालक एपरि मो परे असंख्य बालक अछंती तो किपरि भाबरे मु ए हरे कृष्ण मंत्र जप करके परम पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्ति करिबी। किपरि यमराज किपरि मु प्राप्ति करिबी? तापाई व्यवस्था है सच्ची पुट्टो इस्कॉन रो फाउंडर आचार्य श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी जेती इस्कॉन नामक एक संस्था प्रतिष्ठा करथिले। देखो ए निरिया भक्त मानू देखो जदि एमान जदि भक्ति करबा सनी ता तमे काहे कर परबेनी? निश्चय करबो भक्त तमे निश्चय करबो। धन्य धन्य ए ज्ञानर महिमा ए ज्ञान पाई मु निजको बहुत गौरवान्वित मन करिछि। आज आपण मोर आखि खोल देले खाली मोर ने एठार उपस्थित समस्त छात्र मानकर आईएम स्टूडेंट मानकर आखि शेषरे मु समस्त को अनुरोध करिवि समस्त हरि नाम जप करंतु अन्यथा मु समस्त सावधान कर दिछि। हम सबु देखुछि चैंटिंग करछो समस्त को अनुरोध करिवि समस्त सळवाला चैंटिंग करिवे अन्यथा जमराज हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। साधु सावधान। जमराज क्या बोला? सावधान। किसको सावधान किए? सबको। क्यों किए? जो नाम नहीं करेंगे उसको ले जाएंगे, है ना? आज से जो नहीं करे नाम वो करेंगे, है कि नहीं? कौन नहीं करे हाथ उठाइए, जमराज से माफी मांगिए, सबसे समझेंगे ना, है कि नहीं? आज से सब नाम करिए कम से कम। कितना माला? 60। कौन बोल रहा है? एक माला बोल रहा है कौन पीछे से? 16 माला 16 राउंड्स। 16 राउंड्स करेंगे तो तभी जम नहीं आएंगे, विष्णु तो आएंगे, और नहीं करेंगे तो जम के साथ जो पीछे रहना वो लोग आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा जमराज महाराज और जो तांकर पार्षद जमदूत को आम आशा कर से एठी केबे आसीबेनी, कहीं आज तांकर शेष दर्शन एठी काली आम एठी 16 माला जप हम कहीं शिल प्रभुपाद
पहुंची गले जे कि प्रभुपाद के विष्णुकर कृष्णकर दूत प्रभुपाद होती कि पूरा डायरेक्ट विष्णु दूत कृष्णकर दूत से समस्त को ये महामंत्र प्रदान कर हरिनाम प्रदान कर अमृत जो अमृत पान कले मृत हम ना जमराज एंट्री क्लोज तेणु आज आम धन्यवाद दे जमराज को जे आज आपण फेयरवेल आम बर्तमान दे दौचु आसवे ना। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर नाटक कले जो माध्यम कि आम ये हरिनाम महत्व आम जीवन महत्व गीतार सार आम बुझीपारे। वास्तव ये हूँ आम जीवन जे आम जो जीवन मनुष्य जन्म मिली आमको जब ये जीवन आम ये मनुष्य से जब भगवान का नाम न करुचे ताहले जमराज जेकोसी उपाय आसबे हार्ट अटैक होगी आसीपारती कैंसर होगी आसीपारती एक्सीडेंट होगी आसीपारती किंबा आउ दौड़ी लगे फैने झुली पारती हाँ ना नहीं। तेणु बुद्धिमान व्यक्ति से हरिनाम करिव आनंद रे नाम करिकी कृष्णामृत पान करिकी विष्णु लोक बुझे अर्थात गोलक धाम बुझे जो मैंने गोलक धाम चाहते जावाई से मैंने इस्कन जॉइन करेंगे जो मैंने जमपुर को जावा चाहते से मैंने कौन करेंगे हालो हाय करेंगे हाँ ना नहीं। तेणु जो मैंने भगवान पाक जी हरे कृष्ण कर बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को आ स्टूडेंट मैंने जेहेतु धैर्य सहित समस्त श्रवण कले तेणु आशा करुचु आम आगू एमती आमर प्रोग्राम हम संगम हम। तेणु तुकाराम प्रभु आउ जो ग्रुप समस्त आम धन्यवाद दौचु आ माधवानंद प्रभु एवं कृष्णकुंड माता जी धन्यवाद दौचु जेहेतु से मैंने पुरी आसछंती बहुत परिश्रम करके समय देखी आउ एनकरेजमेंट आमको कर उत्साहित कर भक्त मान को स्टूडेंट मान को से आम धन्यवाद दौचु। तेणु हरे कृष्ण कही थे आउ स्वागत धन्यवाद दीदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तेणु समस्त बर्तमान महाप्रसाद दिज्व जोटा कि समस्त अंतिम आशा तेणु बहुत बहुत धन्यवाद महाप्रसाद की जय। ओके हरे कृष्णा। तो सभी के लिए प्रसाद है। प्रसाद के लिए आपको लाइन में आना है, यहाँ से आना है और वहां से प्रसाद लेते हुए उस साइड बैठना है। इधर से सब लोग आएंगे वहां से लाइन में बैठना है।